Hello dear students, welcome to my channel. This is your chemistry vibe. We are going to discuss acid and its derivative and the chemical reaction of carboxylic acid. We have already made some videos regarding that. Go and check it out and subscribe the channel right now. So, chemical reactions of carboxylic acid. We have already done decarboxylation in our last video, in which carboxylic acid convert to alkane, right, by using NaOH and CaO. The next reaction which we are going to discuss is dehydration. Dehydration means removing the water molecule, पानी बाहर निकालना. ये रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में होगा. इस तरह से 2 moles of RCOOH आपको ले लेना है. In the presence of P2O5 heat कीजिए इसे. The water molecule will be removed and it will become RCO. RCO plus H2O. This is your acid anhydride. For example, you can write out the example regarding that. CH3COOH acetic acid plus 2 moles CH3COOH. By heating in the presence of P2O5, it will give CH3CO, CH3CO plus H2O. So it is made up of acetic acid, so it is known as acidic anhydride. We can also write down like that CH3CO called twice O, which you can see so many times in examples. The next method which we are going to discuss is reduction. Reduction में क्या करना है आपको? Take aldehyde, I mean carboxylic acid. रिडक्शन करना है आपको. 4 moles of hydrogen कहाँ से आएंगे? In the presence of LiAlH4. ये reducing agent है, तो इससे आएंगे 4 moles of hydrogen atom. It will reduce it to alcohol. किसमें reduce कर देगा? Alcohol. साथ में पानी का molecule बाहर निकल जाएगा. So this is the fourth method. Acid can convert into alcohol. You can write down R की जगह CH3 and the example you can write down इथेनॉल बन जाएगा आपका LiAlH4 की प्रेजेंस में. नेक्स्ट इसमें ऑक्सीडेशन भी किया जा सकता है. तो थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑक्सीडेशन. क्या होता है ऑक्सीडेशन, आइए बता करते हैं. ऑक्सीडेशन में हमने क्या करना है? फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडेशन नहीं किया जाता. जितने भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सब ये रिएक्शन देंगे फॉर्मिक को छोड़ के. फॉर्मिक नहीं करेगा. बाकी अभी अल्काइल ग्रुप है वो रिएक्शन देता है. ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ऑटो का यूज करेंगे, हीट करेंगे. इसमें आप CO2 भी यूज कर सकते हो, या जो प्रोडक्ट होगा एक्चुअली इट्स लाइक अ बर्निंग, सो इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O. एग्जांपल आप लिख लीजिए CH3COOH by heating simply in the presence of oxygen it will convert into CO2 plus H2O. तो कंबशन टाइप का प्रोसेस आपका हो गया. इसको आप बर्निंग भी लिख सकते हो, कंबशन भी लिख सकते हो. इसका यूज़ कहाँ होता है? तो यूरिया बनाने में भी एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ होता है. तो रिएक्शन आप कर लो यूरिया के साथ. नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 विथ यूरिया in which RCOH react with urea, that is NH2CO NH2. This is urea. It will give amide RCONH2 plus NH3 gas removed plus CO2 gas released. So this is example. You can write down CH3COH carboxylic acid plus urea NH2CO NH2. That will give CH3COO NH2
plus H3 gas ammonia plus CO2. So this is an example with urea, the simplest reaction you can write down. Then we understand the next reactions, heating effect of acid. Heating effect of acids, salts. So इसमें क्या होगा, जब आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, कौन सा सॉल्ट लेना है आपको, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, क्या फॉर्मूला होगा, COO, you can write down RCOO whole twice Ca. ठीक है, इसको आपने हीट किया R-COO होल ट्वाइस Ca के साथ, हीट करने पर ये कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है, हीट करने पर इट विल कन्वर्ट इनटू कीटोन RC++OR प्लस R-C++OR डैश प्लस R++OR। तो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं। सपोज यहाँ CH3 होता है, यहाँ पे C2H1, तो इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3CO CH3 C2H5CO C2H5 एंड द लास्ट वन इज CH3CO C2H5। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ कीटोन्स आपको देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्ट इस केस में कीटोन होगा व्हेन यू आर रिएक्टिंग द कैल्शियम सॉल्ट हीटिंग, दो अलग अलग, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना इसका, एग्जाम्पल इजी। सपोज यू हैव कैल्शियम फॉर्मेट LCO HCOO Ca HCOO Ca, इसको कहते हैं कैल्शियम, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से बना है, उसको हम नेम देंगे फॉर्मेट। हीट करने पर सिंपली, तो इसके 2 मोल्स ले लो, ये एल्डिहाइड होगा बेसिकली, H है ना यहाँ पे, और प्लस CaCO3। वहीं पर अगर हम अल्काइल ग्रुप वाला लेते हैं CH3COO Ca CH3COO Ca, इसको हीट करने पर ऐसे 2 मोल्स लेने हमें, हीट करने पर इट विल कन्वर्ट इनटू CH3CO CH3 2 मोल्स। तो यही इसका एग्जाम्पल है जिसे आप याद रख सकते हो। इसको बोलते हैं कैल्शियम, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है, तो कैल्शियम एसिटेट। नेक्स्ट फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन नंबर 6, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की बहुत फेमस अभी हो चुके हैं किसी और वजह से, तो वहीं से रिएक्शन आता है, वहीं केमिस्ट में। और ये आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे याद रखना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन्स देखना है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन्स को आपने ध्यान देना है। या तो आप Br2 यूज़ कर सकते हो, Cl2, Br2 का या Cl2 का। फॉस्फोरस प्रेजेंस में ये हीट होगा, रेड फॉस्फोरस बेसिकली, या आयरन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक होता है, और अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक होकर सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ सिक्स आएगा अगर आपने Cl2 यूज़ किया है, और Br आ जाएगा अगर यूज़ किया है। तो एग्जाम्पल जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम हीट करते हैं Cl2 में, तो वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Cl आ जाएगा और इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाएगा। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जरूरी है, तभी हो सकता है। तो फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। ओके,
नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शंस होती है वो होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ HCOO। ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे? HCOOH है आपका, इसमें अगर आप AgO डाल दो, AgO टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इसकी बात करने वाले मर्क्यूरी क्लोराइड, KMnO4, इन सब की, तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये रिएक्ट देगा H2O प्लस CO2, साथ में Ag यहाँ पर सिल्वर मिरर दे देगा। इसका क्या बन जाएगा? सिल्वर मिरर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम HCOOH की बात करते हैं और उसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। एज यू नो, फेलिंग सॉल्यूशन ये भी इसको रिड्यूस करके H2O प्लस CO2 प्लस Cu2O, इसका आता है रेड PPT, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन में रेड PPT बनता है। नेक्स्ट अगर हम HCOOH की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड 2HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड Cl देगा, CO2 साथ में Hg2Cl2, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसका PPT आएगा, इसको नोट द लिस्ट। अगर हम एक फर्दर जो रिएक्शन होता है, ये Hg2Cl2 बना, इस Hg2Cl2 का रिएक्शन अगर हम फर्दर करा देते हैं तो ये फिर से बनाएगा आपका HCl प्लस CO2 प्लस Hg, और ये याद रखना है आपको, ब्लैक कलर का होता है। ये दोनों एक ही रिएक्शन, और यहाँ पे जो बना था इसका हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें होता है HCOOH प्लस KMnO4। हैव यू हर्ड अबाउट KMnO4, राइट? इसमें KMnO4 और इसके साथ का H2SO4, उसके 5 मोल्स हमें लेने होंगे, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 और 2 moles of KMnO4. It will give K2SO4 plus 3 MnSO4 plus 5 moles of CO2 plus 8 moles of H. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है आपका मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। इसमें लास्ट होता है विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये लास्ट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिड ले लिया आपने RCOOH, इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि R-MgX के साथ रिएक्शन किया तो बनाएगा R-CH2 प्लस RCOOMgX, RCOOMgX और R-CH2 अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो अभी, जैसे आपने लिया CH3CH2 MgX प्लस इसका रिएक्शन किया CH3COOH, तो क्या बनेगा CH3 प्लस CH3COOMgX. So that's all for today, all the chemical reactions. In the next video we are going to discuss benzoic acid. Subscribe the channel right now. Thanks for watching.